Hello everyone, welcome in science class. As you know that we are discussing about the chapter structure of atom, and we had already discussed about the Thomson's model, about the Rutherford's model, and we know that both the model was rejected. There was some drawback in both the model, so they were rejected. Now this one is the Neil-Bohr's model, and commonly it is known Bohr's model. Neil Bohr was the scientist who gave this model and got the Nobel Prize for his work in 1922. And this model was also based on a series of experiments. So let's start Neil Bohr's model. According to this model, an atom has a positively charged nucleus at its center, and most of the mass of the atom is in the nucleus. The same point was described by Rutherford also. So this is the same point. Second, the electrons revolve around the nucleus. This was given by Rutherford in his model. And the same thing with some special remarkable point that he told that electrons revolve around the nucleus in spatial orbits, and these spatial orbits called discrete orbits or shell. In spatial orbits called discrete orbits, इन स्पेशल ऑर्बिट्स को डिस्क्रीट ऑर्बिट्स बोला गया। रदरफोर्ड ने जो बताया था, उन्होंने बोला था इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते हैं, लेकिन उनका ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने ये नहीं बताया कि वो घूमते घूमते अपनी एनर्जी लॉस करेंगे और फिर ऐसे प्रोटॉन न्यूक्लियस में गिर जाएंगे तो एटम तो कोलैप्स हो जाएगा। बट एज वी ऑल नो एटम डू नॉट कोलैप्स। तो ये बात नील बोर ने बताई कि वो घूमते घूमते न्यूक्लियस के पास नहीं जाएंगे। कैसे? He told that electrons revolve around the nucleus in spatial orbits. Orbit, that is a particular path in which electrons revolve around the nucleus, and these called discrete orbits. तो orbits की बात किसने बताई? नील बोर ने। These orbits are called shells or energy levels and are represented by the letter K, L, M, N, etc. Or you can say by the number as 1, 2, 3, 4, etc. So he told that these orbits on which the electrons will revolve, these are known as energy shells or energy levels, or simply they are known as shells. एक्चुअल में इनको एनर्जी लेवल इंडेक्स भी कहा जाता है, उनको नाम दिया गया 1, 2, 3, 4. So these energy levels or shells, these are K, L, M, N, and the number is 1, 2, 3, 4, as you can see in this picture. आप इस picture में देख सकते हैं. And another important thing, while revolving in the discrete orbits, the electrons do not radiate energy. जब electrons इन orbits में घूम रहा है तो घूमते घूमते एनर्जी रेडिएट नहीं करेगा, क्योंकि एनर्जी रेडिएट नहीं करता तो वो न्यूक्लियस की तरफ जाएगा भी नहीं, थकेगा नहीं, तो न्यूक्लियस की तरफ वो अट्रैक्ट नहीं होगा। दैट मीन्स न्यूक्लियस में फॉल डाउन नहीं होगा। तो ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट वाली बात थी और अपने ऑर्बिट पे एनर्जी ना रेडिएट करने वाली बात है, वो किसने बताया? बोहर ने। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस particular energy level, or they do not radiate energy, on this basis now Bohr explained that atom is quite stable. Atom stable है, atom collapse नहीं होता. So Bohr's model was accepted at that time, and till now it is wonderful accepted model. So this one is Bohr's model. So key point एक बार फिर देख लीजिए,
इलेक्ट्रॉन्स डिस्क्रीट एनर्जी शेल पे मूव करते हैं, जिनको हमने बोला K, जो न्यूक्लियस के पास वाली है, सेकेंड वन इज L, थर्ड इज M, फोर्थ इज N, एंड सो ऑन. K is also known as 1, L means 2, M means 3, and N means 4. And in the center, this is positively charged nucleus. Distribution of electrons in different shells. As we know that there are different shells, different energy levels. So how electrons are present in that level? That means on which level how many electrons are there and how they are present in that particular level. So distribution of electrons in different shells. The distribution of electrons in the different shells was suggested by Bohr and Bury. ये भी दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन्स के डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया. The following are the rules for filling electrons in the different shells. The first one, the maximum number of electrons in a shell is given by the formula 2n square. What is the formula? The formula was 2n square. So this one is the formula by which we can identify the number of electron, where n is the number of shell, like 1, like 2, like 3, etc. That means 1 means K. You can see here 1 means K. So while we are writing the formula 2n square, then at the place of n we write 1. So 2 into 1 into 1, 2 electrons. Then 2 into 2 into 2, 8 electrons. Then 2 into 3 into 3, 18 electrons. Then 2 into 4 into 4, 32. So in K shell, remember, this is the maximum number of electrons. So in K shell, the maximum number of electron is 2. In L shell, 8. In M shell, it is 18. And in N shell, it is 32. Remember, this one is the maximum number, but minimum can be anything less than that. The maximum number of electrons that can be filled in the outermost shell is 8. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जब इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो ये तो मैक्सिमम नंबर है कि भाई K में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, L में 8 होंगे, M में 18 होंगे और N में 32 होंगे. लेकिन जो सबसे लास्ट वाली शेल है, फॉर एग्जाम्पल किसी एक एटम में 3 शेल हैं तो थर्ड वाली लास्ट हुई. किसी एक एटम में 4 शेल हैं तो फोर्थ वाली लास्ट हुई. तो लास्ट वाली शेल में जो भी शेल है छोड़ के K के अलावा, लास्ट वाली शेल में जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो मैक्सिमम 8 फिल करके नेक्स्ट शेल पे मूव किया जा सकता है. दैट मीन्स 8 नंबर रख के भी आप उस शेल को फिल मान सकते हो. वैसे तो मैक्सिमम तो नंबर है 2, 8, 18, 32, पर अगर किसी एटम में फॉर एग्जाम्पल n शेल लास्ट है और हमने इस वाली शेल में 18 इलेक्ट्रॉन रख दिए तो अगली में जरूरी नहीं है 32 ही रखें. अगर हमारे पास 8 है तो यहाँ 8 फिल करके हम नेक्स्ट शेल में मूव कर सकते हैं. दिस इज नोन एज लॉ ऑफ ऑक्टेव. इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव कहते हैं. जब मैं एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करूंगी तब आपको ये पॉइंट और क्लियर होगा. इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट बी फिल्ड इन अ शेल अनलेस द इनर शेल्स आर फिल्ड. जब तक आप एक शेल को फिल नहीं करोगे आप दूसरी शेल में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते. दूसरी को फिल करेंगे देन वी मूव टू द थर्ड वन, थर्ड को फिल करेंगे देन वी मूव टू द फोर्थ वन. तो एक शेल को फिल किए बिना नेक्स्ट शेल में हम इलेक्ट्रॉन्स को मूव नहीं करा सकते. दीज आर द रूल्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट दीज रूल्स इन द next one slide. I will discuss only and only about the distribution. Like hydrogen, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तो देखिए K शेल में 1 आ गया. हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 आ गया. लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो 2 फर्स्ट शेल में डाल दिए और बचा फिर 1 को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इट इज जस्ट लाइक अ थिंग कि आपके पास कोई चीज है
और आपको K एक बच्चा है, उसके 2 हैंड है, उसको 2 ही देनी है। L कोई दूसरा बच्चा है, उसके 8 हैंड है, उसको 8 देनी है। लेकिन अगर आपके पास है ही 3 ऑब्जेक्ट, तो आपने K को दे दिया, K चला गया, तो आपके पास 1 बचा, तो आप L को 1 ही दे पाओगे। तो जितने इलेक्ट्रॉन किसी एटम के पास हैं, उतने को ही डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। और बाकी लिमिट आपने देख ही ली कि किस शेल की कितनी लिमिट है। अब देखिए बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 and 2, देन 5 इलेक्ट्रॉन बोरोन के 2 and 3, 6 इलेक्ट्रॉन को 2 and 4, 7 इलेक्ट्रॉन को 2 and 5, 8 इलेक्ट्रॉन को 2 and 6, 9 इलेक्ट्रॉन 2 and 7, 10 इलेक्ट्रॉन 2 8। अब ये फिल हो गई सेकंड शेल। अब देखिए 11 पे 2 8 1, क्योंकि ये दोनों तो फिल हो गई, फिर आगे इलेक्ट्रॉन अगली शेल में डिस्ट्रीब्यूट। 12 2 8 2, 13 2 8 3, 14 2 8 4, 15 2 8 5, 16 2 8 6, 17 2 8 7 एंड 18 2 8 8। खत्म हो गए 18 इलेक्ट्रॉन। देखिए 8 और 8 16 और 2 18। अब देखिए 19 को 2 8, हालांकि थर्ड शेल M की कैपेसिटी मैक्सिमम 18 है, तो आप यहाँ पे 9 रख के चल सकते थे, लेकिन हम उस शेल को 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रख के फिल मान सकते हैं। और मैक्सिमम नंबर जो लास्ट शेल की हमने बात की थी, वी आर नॉट सेइंग कि वो लास्ट शेल L है कि M है कि N है, कोई भी लास्ट शेल होगी। और अगर आपके पास उस शेल में फिल करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करके नेक्स्ट में मूव करना है, ये रूल है। तो देखिए 19 को कहा 2 8 8 फिर 1, देन 20 को 2 8 8 एंड देन 2। सो दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल है। अभी मैं 2-3 सेशन में इसी टेबल को आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि आज मैंने सिर्फ आपके साथ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस किया। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग इफ दीज आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then this one will be the pattern of distribution. Again we will discuss this table completely. So I hope you understand. If you have any problem, then you please discuss about that phonically. Have a nice day. Goodbye.